Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your immunology second, and yes, this is the last chapter of your syllabus of immunology, and this chapter is seventh chapter, that is the hybridoma technology and monoclonal antibodies. Okay, this chapter is going to be all about the monoclonal antibodies and how to generate them or how to produce them in the lab, and importantly what are the applications of the monoclonal antibodies. Okay, so these are all the overview or all the things that we are going to study in this particular chapter. This chapter is not very large, very short and simple, and only two things that we need to understand about this chapter is that firstly we need to know about the monoclonal antibodies, secondly how to prepare them and use them. Okay, these are all the things that we are going to study in the last lecture. If we rewind, we have already done with the hypersensitivity part. We have learned what is hypersensitivity, types of hypersensitivity. Along with that, autoimmune diseases we have seen, different type of autoimmune diseases we have studied, their pathophysiology we have seen. Okay, now this chapter, which is the last chapter, is all about the monoclonal antibodies. If we rewind back in the previous chapters, okay, we have seen the applications of the monoclonal antibodies, that how we can use them in the ELISA, we can use them in the various immunoassays for the detection of the disease or the diagnosis of the disease. Also we have learned even in the hematology thing, we have seen that how to use the monoclonal antibodies for the detection of blood groups also. Okay, so these monoclonal antibodies basically are having the wide range of applications. Okay, that's why it is very important to study how to prepare them inside the lab. Okay, if we prepare them, then it is very easy way that after preparing them we can use them for the different purposes, different laboratory application, different diagnostic applications. Even it is been used and employed in the therapeutic approaches also, like for the treatment of the cancer, various autoimmune diseases. Okay, different things can be done using the monoclonal antibodies. This is a very we can say important part of the immunology. So firstly, before coming towards the main point, we need to understand about the monoclonal antibodies. Okay, we need to know what are these monoclonal antibodies जो हम हर जगह पे यूज़ करते हैं, तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. तो जब कोई भी, ओके आई वुड एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिकली, जब कोई भी एंटीजन आता है बॉडी में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है. उसके बाद बी सेल्स प्रोड्यूस करती है प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, वो प्रोड्यूस होने के बाद इस एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज जो है, ठीक है, ये अगर डिफरेंट एंटीजन्स के लिए, मतलब एक डिफरेंट के लिए, एक दूसरे के लिए, एक तीसरा दूसरे के लिए, या फिर एक ही एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स के लिए सेम है. ठीक है, ऐसी एंटीबॉडीज़ को कहा जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़. पॉलीक्लोनल मतलब क्या, एक तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मा सेल से बनी है, या तो फिर एक ही एंटीबॉडी है, एक ही सेल से बनी है, लेकिन वो जो बाइंड होती है वो डिफरेंट इपिटोप्स को होती है. ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिकली एक के लिए नहीं बनी होती, दो चार इपिटोप्स के लिए वो आराम से हो जाती है एडजस्ट. ठीक है, ऐसी एंटीबॉडीज़ को कहा जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़. ओके, और इनके ऑपोजिट जो एंटीबॉडीज़ होती है वो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. ओके, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इम्यूनोलॉजी में. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है, तो पर्टिकुलरली मोनोक्लोनल मतलब क्या, कि वो एक ही टाइप के क्लोन से बनी है. ठीक है, मतलब सपोज ये बी सेल्स है. ठीक है, बी सेल ने है जो है प्लाज्मा सेल्स बनाई. ठीक है, और ये प्लाज्मा सेल्स ने 4 एंटीबॉडीज़ बनाएगी. ठीक है, अभी चारों जो एंटीबॉडीज़ है ये चारों एक ही टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट है, प्लस ये एक ही क्लोन की बनी है, मतलब एक ही टाइप के
जो है प्लाज्मा सेल से बनी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोक्लोनल। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय इट्स नेम ओनली। यू कैन सी मोनो एंड क्लोनल, ठीक है। मतलब सिंगल क्लोन से या फिर सिंगल टाइप के जो है प्लाज्मा सेल से जो बनी हुई है, दैट इज द एंटीबॉडी विच इज नोन एज व्हाट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एज आई टोल्ड यू, फ़ायदा इनका ये है कि एक तो ये एक ही टाइप के क्लोन से बनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये सभी एंटीबॉडी जो कि एक ही टाइप के प्लाज्मा सेल से बनी है, इसके साथ साथ इसका ये भी एडवांटेज है कि ये जो है सभी जो एंटीबॉडीज़ है वो एक ही एंटीजन के अगेंस्ट है और एक ही प्लाज्मा सेल से बनी है, तो इसलिए ये एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिसिटी ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। और यही स्पेसिफिसिटी का हमें यूज़ करना है इन द इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ये स्पेसिफिक बहुत होती है, इनका बहुत बड़ा रोल है इम्यूनोलॉजी में, बी इट थेरापिटिक एप्लीकेशन, बी इट डिटेक्शन एप्लीकेशन, डायग्नोसिस में भी, ठीक है। तो इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को आजकल बहुत वैल्यू है एंड इनका यूज़ करके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है हमारी इम्यूनोलॉजी सेक्शन में। तो इसलिए आपके जो स्टडीज़ में ये इंक्लूड किया है कि इसको बनाया कैसे जाता है लैब में, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फर्स्टली गो थ्रू द हिस्ट्री अबाउट दैम, ओके, कि इनकी इतनी अच्छी डिस्कवरी की किसने है। तो इनकी डिस्कवरी की है द टू साइंटिस्ट इन 1975. वन वॉज जॉर्ज कोहलर एंड अनदर वॉज सीजर माइलस्टन, ओके। इन दोनों ने इन 1975 डिस्कवर की थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है, इन्होंने ऐसा सेल इन्वेंट किया, ठीक है, ऐसा सेल इन्वेंट किया, हाइब्रिड सेल था वो, कि जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जा सकती है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इन 1984। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला दोनों को। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट दे वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ फॉर देयर डिस्कवरी। एंड मेन इम्पॉर्टेंटली उनकी डिस्कवरी यही थी कि हाइब्रिड सेल ऐसा इन्होंने इन्वेंट किया कि जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकती है फॉर द डिफरेंट एंटीजन्स, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि एग्जैक्टली जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे, एक डिटेल नहीं बट एक ओवरऑल प्रोसीजर बताती हूँ कि कैसे बनाई जाती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है, अब जैसे मैंने आपको मेंशन भी किया, डिस्कवर क्या हुआ था, हाइब्रिड सेल। तो जनरली हमारी बॉडी में जब कोई, अब हमारी बॉडी से ज़्यादा आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, माउस का, ठीक है। तो जनरली माइस जो है हमारे रिसर्च टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एनिमल है, क्योंकि उसका डीएनए हमसे मिलता जुलता है, प्लस उसका ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होता है, ईजीली ग्रो हो जाती है माइस, तो इसलिए हम उन पे ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और हमें रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। तो यस, दिस इज़ वन थिंग। प्लस उनकी जो और एंटीबॉडीज़ वगैरह उनमें जो प्रोड्यूस होती है वो हमसे मिलती जुलती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा इसलिए जो है माइस को यूज़ किया जाता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब माइस के अंदर क्या किया जाता है, एक एंटीजन है, ठीक है, एक टाइप का एंटीजन है। अब मुझे इसके अगेंस्ट जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनानी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस एंटीजन को इंजेक्ट किया इन द माइस, ठीक है, माइस में इंजेक्ट किया। अब इंजेक्ट भी कैसे किया, इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली, ठीक है, या तो ज़्यादातर इंट्रावेनसली किया जाता है, ठीक है, पेरिटोनियल, ओके। नाउ यहाँ पे होता क्या है कि ये माइस की जो बॉडी है, ठीक है, अब ये ब्लड सर्कुलेशन में गया है एंटीजन, अब माइस की बॉडी एक्टिव हो जाएगी, सर्कुलेशन में एंटीजन चला जाने के बाद ये एंटीजन जाएगा माइस के स्प्लीन में, ठीक है, सर्कुलेशन के बाद जाएगा स्प्लीन में। स्प्लीन में जाकर उसके स्प्लीन में इस एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल कुछ प्लाज्मा सेल्स बनाएगी, ठीक है। अब ये प्लाज्मा सेल्स कहाँ रहेगी, इन द स्प्लीन ऑफ द माइस। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी, इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी फिर, मोनोक्लोनल। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने वाले जो अब इतना ज़्यादा आपको
जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं। यू कैन सिंपली जो प्लाज्मा सेल्स है उनको निकाल सकते हैं हम बीच में। जब बी सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाएगी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, वो प्लाज्मा सेल्स भी हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, उनको कल्चर कर सकते हैं लैब में और उनसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आराम से बना सकते हैं, जितने चाहिए उतनी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। मतलब इनकी लाइफ स्पैन जो होती है 1 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे सेल्स इतने कम टाइम में सर्वाइव करते हैं और फिर इनसे एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो क्या किया जाए फिर? तो करना क्या है, तो इनका हाइब्रिड बनाया जाता है। अब कैसे वो, तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत छोटी टाइम स्पैन के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो इनको जो है हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी पड़ेगी जिससे इनका लाइफ स्पैन बढ़ाया जा सके। फॉर दैट थिंग व्हाट इज़ नोन टू डू इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ दी वन सेल दैट इज़ नोन एज दी कैंसरस सेल। ठीक है, कैंसरस प्लाज्मा सेल या फिर उसको जो है माइलोमा सेल्स। ठीक है, माइलोमा सेल्स क्या करती है? ये जो सेल होती है जनरली, जो कैंसर सेल्स इनको कहा जाता है, ये सेल्स इमॉर्टल होती है। आपने कैंसर सेल्स के बारे में अगर सुना होगा तो वो सेल्स जो है रैपिडली डिवाइडिंग होती है, प्लस उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो कभी नहीं मरती। आप कितना भी कोशिश करो वो मरती नहीं, इसलिए कैंसर को क्योर करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक बार वो फैल गया तो वो इंसान का बच पाना इज़ लाइक नियर टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि एक इमॉर्टल सेल्स है। तो इमॉर्टल मतलब क्या? जो बहुत टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, जिन पे इफ़ेक्ट नहीं होता। अब किया क्या जाता है लैब में, तो ये दोनों सेल्स है। ठीक है, अब ये हमारी वाली प्लाज्मा सेल है और ये है माइलोमा सेल या फिर कैंसर सेल। अब मुझे इस प्लाज्मा सेल को इमॉर्टल बनाना है। अब ये प्लाज्मा सेल बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रहती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक जिंदा रहती है। तो मुझे इस सेल को बनाना है इमॉर्टल। तो किया क्या जा सकता है? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पर्टिकुलर वो 2 साइंटिस्ट लोगों ने इसको फ्यूज़ किया। ठीक है, फ्यूज़ कैसे किया जा सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीग्लाइकॉल। ठीक है, या फिर तो इलेक्ट्रोफोरेशन की मदद से क्या किया जाता है? इन दोनों को फ्यूज़ किया जाता है। इनसे बनती है एक हाइब्रिड सेल। ठीक है, ये हाइब्रिड सेल की एबिलिटी क्या होती है कि ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल के वजह से बनी हुई है। अलॉन्ग विद दैट ये एक कैंसरस सेल का भी पार्ट है। मतलब इसमें 50% क्या होगा? माइलोमा पार्ट होगा और 50% होगा प्लाज्मा सेल का पार्ट। तो ये इमॉर्टल होने के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज़। कौन सी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल से बनी है। तो ऐसे इन्वेंशन हुआ था हाइब्रिड सेल्स का, जो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। ठीक है, या फिर जो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इस पूरे टेक्नोलॉजी का, इसमें बनाया क्या जाता है? एक हाइब्रिड सेल। जो बनाया किससे है? हमने कैंसर सेल से एज वेल एज दी प्लाज्मा सेल। जो बी सेल ने प्लाज्मा सेल बनाया है, ओके, वाइट ब्लड सेल है वो एक टाइप का। तो वो प्लाज्मा सेल को जो है उसको हमने क्या किया? फ्यूज़ किया विद द माइलोमा सेल, जो कि इमॉर्टल है। क्योंकि डिसएडवांटेज क्या है प्लाज्मा सेल का? कि वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हमें उसकी लाइफ बढ़ानी है, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। तो इसलिए हमने क्या किया? उसको फ्यूज़ किया विद दी माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स का एडवांटेज यही है कि वो इमॉर्टल होती है। तो इन दोनों के फ्यूजन की वजह से एक ऐसा सेल बना जिसको हम हाइब्रिड सेल कहते हैं, कि जो इमॉर्टल होने के साथ साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का होल एंड होल्ड यही प्रोसेस है। अब ये सेल का एक और एडवांटेज ये भी है, क्योंकि ये एक कैंसर सेल है तो डिवाइड भी बहुत जल्दी होती है, रैपिडली होती है। क्योंकि कैंसर सेल का यही एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अब इन दोनों ये दोनों क्वालिटी हमने मिक्सअप करने की वजह से इस होल सेल्स को जो हमने बनाई है, ठीक है, जो माइलोमा सेल्स और जो प्लाज्मा सेल से मिला के जो सेल बनाई है उसको हमने हाइब्रिड सेल कहा है। और उससे हमने क्या किया? एंटीबॉडीज़ बनाई, जिसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और इस होल टेक्नोलॉजी को कहा जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी।
इसके नाम में इसका जवाब है हाइब्रिडोमा। मतलब क्या कि हाइब्रिड सेल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो हाइब्रिड सेल जो बनाई गई है यूजिंग द फ्यूजन ऑफ द माइलोमा सेल एंड दी प्लाज्मा सेल, ठीक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाती उनका फ्यूजन करके एक हाइब्रिड सेल बनाई जाती है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी यूजिंग अ स्पेसिफिक मीडियम, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, इज़ नोन एज दी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। दिस आर द एंटीबॉडीज़ जो आइडेंटिकल होती है क्योंकि वो एक ही टाइप के पैरेंट सेल से बनी है, एज वेल एज उनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो एक ही एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक ही पैरेंट सेल से बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, इट इज़ जनरली मेड बाय दी प्लाज्मा सेल, जो आपको याद रखना है। बी सेल से कौन बनता है? प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से बनता है एंटीबॉडी। नाउ इवन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसा नहीं कि ये बस एंटीबॉडी जो है एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी, एक एंटीटॉक्सिन के जैसे भी काम करती है। लाइक स्नेक बाइट्स में जो वेनम होता है, ठीक है, जो जहर होता है, उसके अगेंस्ट एंटीडोट बनाने के लिए भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। एज वेल एज जो स्पाइडर बाइट्स हो या फिर बी बाइट्स, उस केसेस में भी जो वेनम होता है बहुत जहरीला होता है, इसलिए जब वो जहर, मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था कि जो जहर है वो अगर आपने किसी एनिमल में इंजेक्ट किया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ उस एनिमल में प्रोड्यूस होगी, जो एंटीबॉडीज़ एज अ एंटीटॉक्सिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेरा, ठीक है। और एंटीटॉक्सिन जो होते हैं वो भी आप इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की मदद से बनाते हो, ठीक है। तो ये भी इनका एक एडवांटेज है। नाउ अब ये जो पूरी प्रोसेस है, पूरी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, ये कैसे करते हैं, कैसे इसकी प्रोसीजर होती है, डिटेल में हम इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस बेसिक टेक्निक ऑफ दी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मतलब मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है। ओके, क्या होती है? तो दो सेल्स का फ्यूजन करके एक हाइब्रिड सेल बनाया जाता है। दो सेल्स कौन सी? तो कैंसर सेल एंड द सेकंड वन विल बी दी प्लाज्मा सेल्स, उनको मिला के बनाया जाता है एक हाइब्रिड सेल जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अब वो कैसे बनाया जाता है उसकी बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है जो हम इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। सो अप टिल नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ओके, सो we will see the remaining part in the next lecture. Thank you and keep watching. If you have any problem, please ask as well as try to understand this point using different lecture also. Thank you.